Good morning, students. Today we are going to start with exercise 3.1, chapter data handling, class 7, question number 5. In question number 5, following table shows the point of each player scored in 4 games. Here is the table in which there are 3 players, player A, player B, player C. Player A played game 1 and scored 14 marks. In game 2 he scored 16, in game 3 he scored 10, and in game 4 he scored 10, and respectively all B and C. B player in game 1 he scored 0 marks, in game 2 8, game 3 6, and game 4 4, and C player in game 1 8, 11, and third game he did not play, and fourth game it is 13. Now the question is, now the answer the following question. Find the mean to determine a average number of points scored per game. कह रहा है कि आप बताओ कि A का मीन क्या है. That means to find out the mean of A. तो mean marks of A. This is your first part. Mean marks of A is calculated by sum of total score divided by number of games played. क्या करेंगे हम जितना भी स्कोर ए प्लेयर ने स्कोर किया है उन सबको ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड. लेट अस डू नाउ. In game 1 he scored 14, then 16, then 10 plus 10. And how many games he played? 4 games. So divided by 4. तो आंसर इज, टोटल करिए इसको तो ये आ जाएगा 6 + 4 10 and 50. टोटल आ गया 50, 50 by 4. सो आंसर इज 4 1s are 4, 4 2s are 10 and 10 आ गया. ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5, 12.5. Now in part second, to find the mean number of points per game for C. Question second part says that find the mean number of points per game for C. That means I have to calculate the mean marks of C. Would you divide the total number by 3 or 4 and why? The question says that कि क्या जो इसका टोटल है वो 3 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा, और किसकी बात कर रहे हैं? C प्लेयर की. तो mean marks of C can be calculated similar as we calculate the A. Now 8 plus 11 plus, ये तो इसने खेला ही नहीं तो यहाँ पे आ गया 13 and divided by how many? We should divide it by 4 because इसने नहीं खेला, but all in table we have 4 games, so we have to divide it by 4. Now what is the answer? 3 plus 1 4, 4 12 का 1 तो 32. 32 divided by 4, 4 8s are 32. That means 8 is the mean marks or mean score of A. You can say instead of marks you can write score. Score is the better word because these are not the marks but these are the scores. ठीक है, तो mean score of A and mean score of C. Now moving towards the third part. Now student, the mean point score of C is 8. अभी हमने सॉल्व करके बताया कि mean score जो था C का वो क्या था 8. इसके साथ ही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि why would you divide the total point by 3 or 4, और क्वेश्चन मार्क है why. तो आप लिखोगे we divided by 4. हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे जैसा आपने देखा था कैलकुलेशन करते वक्त हमने किया भी था, बिकॉज we have to compare the point scores of different players. हम क्या करेंगे? 4 से ही डिवाइड करेंगे. वाई? बिकॉज हमें कंपेयर करना है, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ करना है. तो आप देख रहे हो कि ए ने 4 गेम प्ले किए हैं, बी ने भी 4 किए हैं,
तो सी का अगर हम 3 करेंगे तो कंपैरिजन गलत हो जाएगा. दैट इज वाई वी डिवाइडेड बाय 4 एंड वी राइट इट बिकॉज वी हैव टू कंपेयर द पॉइंट स्कोर विद द डिफरेंट प्लेयर्स. ठीक है, ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट सेज दैट B played in all the 4 games. How would you find the mean? Very simple. कह रहा है कि B ने चारों गेम खेले हैं तो इसका क्या होगा मीन. तो मीन स्कोर ऑफ B is total number of score 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by 4. फर्स्ट गेम में ये डक पे ही आउट हो गया था, 0 स्कोर बनाया इसने. तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 6 4 10, 10 और 8 18, 18 अपॉन 4. ये आ जाएगा 4 4 16, 4 5 28, 4.5. नाउ द मीन स्कोर ऑफ B is 4.5. Now fourth part is who is the best performer? For the best performer, now I have to find out who is the best performer among these 3. Now what is the A का स्कोर कितना आया था? 12.5. B का स्कोर आया था हमारे पास 8. C का स्कोर आया है 4.5. So student, among this it is very clear that the performance of A is best among 3. ठीक है, इन तीनों में बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है? A की. होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. Now moving towards the question number 6. Question number 6 says that the marks out of 100 obtained by a group of student in science test are this. कह रहा है कि एक साइंस का टेस्ट कंडक्ट हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स परफॉर्म किए हैं. दैट मीन्स कि साइंस टेस्ट में किसी बच्चे ने 85 लिए हैं, किसी ने 76, किसी ने 90, किसी ने 85, किसी ने 39, किसी ने 48, 56, 95, 81 and 75. These are the science score by the students. Now find the highest and the lowest marks obtained by the student. So before solving these parts, first step I have to convert it into ascending order. हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं and I also ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज नोन एज एरेड डाटा. तो हम इसको पहले एरेड डाटा के फॉर्म में बनाएंगे, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 39. ठीक है, 39 के बाद है हमारे पास 48, 48 के बाद है 56, 56 के बाद है हमारे पास 56 के बाद 75, देन 76, 76 के बाद 85, 81, देन 85, 85, 85 2 टाइम्स है, देन उसके बाद 90 एंड देन 95. लेट मी चेक ये कंप्लीट होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 3 6 7 8 9 10. ओके, दैट मीन्स कि हमने क्या किया, अपने डाटा को एरेड डाटा में बना लिया, अरेंज कर लिया इन द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ आई विल आंसर द क्वेश्चन. द फर्स्ट पार्ट इज हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट. सो हाईएस्ट मार्क्स आप मुझे खुद ही बता सकते हैं, बहुत ईजी है. हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किया है, क्योंकि मैंने इसको अरेंज कर लिया है, तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे? इट्स 95. लोएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे? लोएस्ट मार्क्स हो जाएंगे 39. Now what is the second part? Second part says that range of the following marks obtained. इसका range क्या होगा? तो students, you know what is the formula for the range of data? Highest value minus lowest value. पहले हम highest value निकालेंगे, फिर lowest value निकालेंगे और उन दोनों को फिर subtract करेंगे. I will change the marker. हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई है? 95 एंड लोएस्ट वैल्यू कितनी आई है? 39. दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6, 8 में से 3 गया 5. तो 56 इज द रेंज ऑफ द डाटा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट सेज दैट मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप. दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द मीन मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑब्टेन. अब इसका मीन मार्क्स निकालने के लिए क्या करना है? इन सबको हमने ऐड करना है. mean marks of the students. तो क्या करेंगे? टोटल स्कोर बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
नाउ द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मीन मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 98, ये आ जाएगा। आप टोटल है 730 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, सो हमारे पास मीन मार्क्स कितना आ गया, 73। तो होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7. Number 7 says that the enrollment in a school during 6 consecutive years was follows. Enrollment in a school, that means कोई स्कूल है उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल होते हैं, मतलब कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो एक ईयर में इतने हैं, दिन इतने और इतने, ये आपको दे रखे एनरोलमेंट 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, मतलब फर्स्ट ईयर में इतने होंगे, दूसरे साल में इतने, तीसरे साल में इतने, चौथे, पाँचवें और छठे साल में इतने। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। यू हैव टू फाइंड आउट द मीन एनरोलमेंट। मुझे क्या निकालना है, मीन एनरोलमेंट। तो आप मैं लिखूंगी मीन एनरोलमेंट, मीन एनरोलमेंट इज इक्वल्स टू, इन सबका सम 155 प्लस 1670 प्लस